Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 12 that's name is ratio and proportion. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें ये चैप्टर। आइए देखो, तो सबसे पहले ये कुछ कंटेंट है जो भी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। In our daily life, we often come across the situation where we need to compare two quantities. The example, the marks obtained by the two students, the weight of the two students. So when the comparison is done by the division, it is called ratio. मतलब हमने क्या किया, हम जब दो यूनिट्स को, दो डिजिट्स को क्या करेंगे, डिवीजन से कंपेयर करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, रेशियो। एग्जाम्पल, mark obtained by the A and B are 20 and 21 respectively. Then the ratio of mark of the A and B to be 20:21. ठीक है, रेशियो में हमने कंपेयर कर दिया ना। रेशियो, the ratio of two quantities of the same kind and expressed in the same unit is a fraction which shows how many times one quantity is of the other. ठीक है, if A and B are the two numbers, then the ratio of the A and B is, देखिए A divided by B करेंगे, it means we can also write as A by B, whereas A is not equals to 0 and B is not equals to 0. Symbolically, ratio between A and B is denoted by the A is to B. ठीक है, ये जो आपके डॉट दिखाई दे रहे हैं ये आपके रेशियो के साइन है। Here A is called the antecedent and the B is called the consequent. ठीक है, remember this first. A is not equals to B. If A is not equals to B, then the ratio of A is to B and the B is to A are not equal. Clear हुआ? आप उसको जैसे ये देखिए, ये 2:3 है, ये 2:3 है, is not equals to 3:2. Clear? Second, the ratio A is to B has no unit and it does not depend of the unit of A and B. ठीक है? Now the third is the ratio A is to B can be determined if A and B both are non-zero. ठीक है, and the fourth is ratio can be expressed as a fraction. Two quantities can be compared only if their units are same. ठीक है, चलिए, so the simplest form of the ratios करके देखते हैं। A ratio is said to be in the simplest form if the antecedent and the consequent have no common factor other than 1. ठीक है, like HCF क्या होना चाहिए, उसका 1 होना चाहिए। जैसे कि ये 20 और 25 है, आप देख रहे हैं कि 20 को हम 5 into 4 लिख सकते हैं और 25 को 5 into 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा 5 से तो 5 यहाँ पे कट जाएगा, लेकिन ये 4 और 5 बचेगा। इट मीन्स 4:5 इसका लीस्ट फ्रैक्शन है जिसमें कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. ओके, सो द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 20:25 इज 4:5. नाउ इक्विवेलेंट रेशियोज देखो, व्हेन द antecedent and the consequent of the ratio are multiplying or the dividing by the same non-zero number, it gives the equivalent ratios. देखो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, उसी तरीके से हमने क्या किया है, ये हमारे इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। जैसे कि 3/4 था, 3:4 को वी कैन ऑल्सो राइट लाइक 3/4। हमने क्या किया, सिमिलर नंबर से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया है, तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20. ठीक है, तो ये क्या है आपका 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट रेशियो है। ठीक है, सो 3:4 is equals to 15:20 are equivalent ratios. Now dividing a number in the given ratio, देखो, so let a number m is to be divided in the ratio a is to b, then first part देखो इसे कैसे करेंगे, a अपॉन में हो जाएगा दोनों नंबर्स का सम इनटू m, और यहाँ पे अगर b का करेंगे तो b अपॉन में a प्लस b इंटू हो जाएगा m. ठीक है, सो next is the comparison of the ratios. To compare the two or more ratios, we convert them into fractions and follow the method of fractions. Like example number 1 करते हैं, there are 20 girls and 15 boys in a class. ठीक है, so first is what is the ratio of the number of the girls to the number of the boys. पहले number of the girls कितनी है 20, number of the boys कितने हैं 50. ठीक है, 15. अब दोनों का रेशियो निकालते हैं। जब हमने दोनों का सम किया, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास 20 + 15, ये हो जाएगा आपका 35. ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करें। सो द रेशियो आपको निकालना है नंबर ऑफ द गर्ल्स का टू द नंबर ऑफ बॉयज. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 35, और यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ द गर्ल्स का रेशियो निकालना टू द नंबर ऑफ द बॉयज,
तो नंबर ऑफ द गर्ल्स कितने हैं 20, बॉयज कितने हैं 15, सो 20/15 हो गया, ठीक है। अब 20 को हम लिख सकते हैं 5 into 4, 15 को लिख सकते हैं 5 into 3। नाउ वी कैन कट दिस 5 और ये 4/3 मींस 4:3। ये आपका रेशियो है, ठीक है। रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द टोटल ऑफ द बॉयज अगर पूछा जाए, सो द नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है और टोटल स्टूडेंट्स का कहा जाए तो 35 है, मींस 20/35। ये 20 को हमने लिखा है 5 into 4 और 35 को लिखा है 5 into 7। नाउ वी कैन कट दिस बोथ नंबर, तो ये हो जाएगा 4/7 मींस 4:7, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो लेंथ था ये और ब्रेथ ये। अब हमने जब रेशियो निकाला है लेंथ और ब्रेथ का, सो 50 मीटर और ये 15 मीटर कितना हो जाएगा, देखिए 50 को हमने लिखा 5 into 10, 15 को हमने लिखा 5 into 3। नाउ वी कैन कट दिस और ये हो जाएगा 10/3 मींस 10:3। सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये 15/18 है, ठीक है। तो इस बॉक्स में क्या है, ये एम्प्टी है और ये 6 है, ओके ओके। तो इस क्वेश्चन में देखिए 15/18 है और यहाँ पे क्या है, एम्प्टी बॉक्स है। तो आपने क्या करना है, देखो 18 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आता है, ये हो जाएगा 6 3 इट मींस इसको हमने 3 से डिवाइड किया होगा तभी 6 आया। तो इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं 3 से, ठीक है। इसे जब डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 5 15, तो यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना है, 10 है। अब ये 10 कैसे आया होगा, जब हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 10 आया। तो 2 से 6 को भी कर दो, 6 2 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलरली ये देखिए कैसे आया होगा, इसको भी आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देखो ये आप देख रहे हैं 5/6 ये आ गया था हमारा, फिर आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है हमारा 5/6 था, 6 into 5 करेंगे, ठीक है। इसी नंबर को देखो हमने ये निकाल दिया, हमें 10/12 आ गया। अब ये जो नंबर था हमारा इसके कैसे इक्वल हो सकता है, जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हमारे पास नंबर आएगा, ठीक है। मतलब 6 into 5 किया यहाँ पे और ऊपर में क्या किया 5 into 5 करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला नंबर आ गया आपके पास। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको रेशियो निकालना है 81 to 135। ये देखो 81:135 मींस 81/135। इसको हमने लिखा 27 into 3, इसको लिखा 27 into 5। सो वी कैन कट दिस, ये हो गया 3/5 मींस 3:5, ठीक है। सिमिलरली ये वाले क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इन अ ईयर असलम अर्न्स 2 lakh and saved 60,000. Find the ratio of money that Aslam earned to the money he saved. तो पहले इसका बताना था आपको, अर्निंग में कितना है 2 लाख और सेविंग कितना है 60,000। तो आपने यहाँ देखा कि अर्निंग माइनस सेविंग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये वाला अमाउंट है, ठीक है, ओके। नाउ इसका रेशियो निकालना था हमें, तो देखिए 2 लाख/60,000 ये किया हमने, 10/3 आ गया, 10:3, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी अदर क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए एग्जांपल नंबर 7, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज ₹180 एंड द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹56। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन टू द कॉस्ट ऑफ द बॉल पेन। देखो ये कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन की 180 है, कॉस्ट ऑफ द बॉल पेन 56 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन, ठीक है। मतलब आपको क्या निकालना है, 1 डजन पेन का मतलब क्या है, यहाँ पे 12 पेन्स है ना। टोटल कॉस्ट कितनी थी 180, तो हम क्या करेंगे 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे, हमने 12 से डिवाइड किया, ये आ गया 15 रुपीज। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस। देखो कॉस्ट ऑफ द 8 बॉल पेन कितनी हो जाएगी, 8 बॉल पेन की कॉस्ट ये कितनी है आपको 56 गिवन है, ठीक है, 8 बॉल पेन की। तो हम यहाँ पे 1 बॉल पेन की कॉस्ट निकालेंगे, 56 डिवाइड बाई 8 करके ये आ जाएगा 7। नाउ वी कैन फाइंड द रेशियो। सो कॉस्ट ऑफ द पेन एंड द कॉस्ट ऑफ द बॉल पेन, देखो ये 15 था ये 7 था, दोनों को निकाला 15:7 आ गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, देयर आर 40 गर्ल्स एंड 25 बॉयज इन अ क्लास, ठीक है। कितने हैं 40 गर्ल्स है 25 बॉयज हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स टू द नंबर ऑफ द बॉयज। तो नंबर ऑफ द गर्ल्स कितनी है 40 है, 40 अपॉन में 25 हो जाएगा नंबर ऑफ द बॉयज। इसको और फर्दर कट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा, देखो इसको लिख सकती हूँ मैं 5 into 8
और इसे लिख सकती हूँ मैं 5 into 5। ना 5 से 5 कट गया, ये हो जाएगा 8/5, मतलब 8:5। ठीक है। What is the ratio of the number of the boys to the total number of the students in the class? ठीक है, क्या बोला है? What is the ratio of the number of the boys to the total number of the students? तो number of the boys कितने हैं? यहाँ पे है 25 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं? 40 + 25 कितना हो गया? 65। तो ये हो गया यहाँ पे 65। इसे हम लिख सकते हैं, देखो 5 से कट करेंगे, कॉमन फैक्टर है, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 3 × 15। तो ये हो जाएगा आपका 5:13। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 10 लाइक क्रिकेट, 16 लाइक फुटबॉल एंड रेस्ट लाइक बैडमिंटन, फाइंड द रेशियो ऑफ। देखो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट टू फुटबॉल, देखो क्रिकेट टू फुटबॉल का रेशियो निकालना है। क्रिकेट कितना पसंद करते हैं? क्रिकेट पसंद करने वाले हैं 10, और फुटबॉल 16 पसंद करने वाले हैं, मतलब 10/16। इसे और फर्दर कट करेंगे, 2 5 और 2 8 16। ठीक है। वी देखो नंबर ऑफ द स्टूडेंट लाइक फुटबॉल टू द बैडमिंटन, फुटबॉल कितना पसंद करते हैं? ये पसंद करने वाले हैं 16, और बैडमिंटन ये है हमारे रेस्ट, है ना, रेस्ट ऑफ द बैडमिंटन। तो पहले निकालो टोटल ऑफ द स्टूडेंट कितने थे? 40, उसमें से 10 तो क्रिकेट पसंद करते हैं, 16 पसंद करते हैं फुटबॉल। अब इन दोनों को प्लस करो, ये 26 आता है, फिर 40 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 विल बी योर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक बैडमिंटन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, इसको कट करेंगे, 2 8 = 16, 2 7 = 14, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5:8 और ये हो जाएगा आपका 8:7। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो 24/36 है, यहाँ कितना आ जाएगा बताओ? देखो ये 12 है, इसको जब हमने किससे मल्टीप्लाई किया, किससे डिवाइड किया होगा बताओ? इसको हमने डिवाइड किया होगा 3 से, तब जाके ये 12 आया है। ठीक है, इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, नाउ यहाँ देखो 8 2 ज़ा ये 16 हुआ, मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इसको भी 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब 24 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तब 48 आया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये मतलब यहाँ पे आ जाएगा 32। ठीक है, नाउ अब ये जो इसके और बाकी पार्ट्स है ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देयर आर 110 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टीचर्स टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो नंबर ऑफ द टीचर्स कितने हैं? 110, और रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 3300। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 1/30, मीन्स 1:30। ठीक है। 11 देखो, अ कार गोज 100 किलोमीटर इन 2 hours, अ मोटरसाइकिल गोज 60 किलोमीटर इन 1 hour, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। देखो ये जा रहा था 2 hours में 100 किलोमीटर, तो पहले आप इसका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस निकालो कि ये 1 hour में कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सो ये आ जाएगा आपका 1 hour में, देखिए 100/2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर। ठीक है, इट मीन्स ये 1 hour में 50 किलोमीटर ट्रेवल करता है, और ये जो दिया हुआ था 60 किलोमीटर में 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है 1 hour में। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। ठीक है, तो पहले कार वाला लिखते हैं, कार की कितनी है? ये हो जाएगा 50 अपॉन में 60, इसको फर्दर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5:6। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। चलिए अब बाकी इसके जो क्वेश्चन बचे हैं ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ proportion, देखो if two ratios are equal we say that they are in the proportion and use the symbol, ये देख रहे हैं ये वाला सिंबल यूज करना है या फिर इक्वल का, to equate the two ratios। if a is to b and c is to b are equal then, देखो ये वाले यहाँ पे 4 डॉट आ गए ना, 4 डॉट का मतलब ये इक्वल ही है। ठीक है, so here a and d call the extremes and b and c are called the mean terms। देखो ए और डी टर्म ये क्या है? आपकी एक्सट्रीम टर्म है, मतलब लास्ट में है, और बी और सी जो बीच वाली टर्म है ये आपकी मीन टर्म्स हो गई। वी से दैट ए बी एंड सी डी आर इन द प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल है तो। सो द फोर्थ नंबर डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। हियर द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन, मतलब देखो ए इंटू डी करना है और बी इंटू सी करना है,
ये क्या होगा, जब भी आपका ये दो रेशियोज प्रोपोर्शन में होंगे इट मींस उनकी दोनों एक्सट्रीम वैल्यू का प्रोडक्ट और उनकी दोनों मीन वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन देखते हैं। Three numbers A, B, C are said to be in the continued proportion if A, B, C are in the proportion that is, देखिए A by B equals to B by 2. It means इसको यहाँ पे किया तो ये B स्क्वायर और equals to ये हो जाएगा आपका AC। ठीक है, ये यहाँ पे एरर है, ये B C है। ठीक है, ये B by C है, तो A B इंटू बी किया B स्क्वायर और ये इंटू A इंटू C किया तो ये AC हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन दिस केस B इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C। ठीक है, तो ये जो B है, B क्या है, इसका मीन प्रोपोर्शन है। ठीक है, इट्स कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द A एंड C। C इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 करते हैं, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन द प्रोपोर्शन। देखो ये प्रोपोर्शन में इन्होंने पहले से बता दिया, रेशियो ऑफ द 15 to 60, 15 to 60 निकाला 1:4 आया। रेशियो ऑफ द 40 to 160 निकाला हमने 40/160, ये भी 1/4 आ रहा है। ठीक है, देखो दोनों के रेशियो क्या है यहाँ पे, बराबर होगा, इट मींस दे आर इन द प्रोपोर्शन। नाउ देखो चेक कर लिया हमने, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। चलिए चेक कर लेते हैं, 40% इज टू 200%, कितना आ रहा है ये, देखिए इसको चेक कर लेते हैं। इसको 40/200 किया, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, इट मींस 1:5। क्या ये सेम है, चलिए इसको भी चेक करते हैं। ये 15:75 था, 15/75 इसको कट करेंगे तो 1/5, यस, तो इसका मतलब यस दीज आर सेम। ठीक है, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन द प्रोपोर्शन। देखो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, सेम क्वेश्चन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 33/44 किया, तो ये देख सकते हैं आप 3/4 आ रहा है, मींस 3:4। इसे चेक करते हैं, 75/100 है, कट करेंगे इसे तो ये 25 3 और 25 4 आ गया। ठीक है, तो ये भी 3:4 आ रहा है, तो यस दीज आर इन द प्रोपोर्शन, यस, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, बाकी के अदर 3 पार्ट्स आप लोग होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द स्टेटमेंट। देखो ट्रू और फॉल्स बताना है। आप देख रहे हैं बीच में किसका साइन है, ये प्रोपोर्शन का, तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 16:24 है, तो 16/24 किया, देखो 4 से कर लेते हैं, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24। ठीक है, 4 6 जा 24, इसको और फर्दर कट करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, तो 2/3 इसका आंसर आ रहा है। इसका चेक कर लेते हैं, 40/60, इसे कट किया और ये 2 2 जा 2 3 जा, यस, इसका मतलब ये वाला सही है। ठीक है, तो ये आपका ट्रू है। इसी तरीके से बाकी भी आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और नहीं नॉट। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे 18 और ये 45 है। ठीक है, देखिए पहले इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इसका 1/2। इसको चेक करेंगे तो ये किससे, देखिए 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और ये 3 1 जा और 3 5 जा 15। ठीक है, 6 और 15 आ रहा है। इसको फर्दर कट करते हैं, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, मतलब ये आ रहा है आपका 2/5, तो ये नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाला नहीं है, ये आ जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। नाउ यूनिटरी मेथड्स, द मेथड इन विच द फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द 1 यूनिट। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, देन द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द यूनिट इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड। तो इसमें हमने क्या किया, सिंपल, पहले आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है एंड देन वी विल मल्टीप्लाई द होल नंबर जो भी आपको गिवन होगा। तो हमने देखिए एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ द 7 मीटर ऑफ द क्लॉथ इज 1470 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 5 मीटर। देखो 7 के दिया हुआ 5 के निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, राइट। सो वी विल डिवाइड द 1470 by 7, ये आ जाएगी 210, इट विल बी द कॉस्ट ऑफ द 1 मीटर। एंड नाउ द कॉस्ट ऑफ द 5 मीटर कितना हो जाएगा, वी विल मल्टीप्लाई दिस, तो ये आ जाएगा 1050। ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 2, एकता अर्न 3000 in 10 days, how much she will earn in 30 days। देखो तो ये 10 days में अर्न करती है, अब 30 days का पूछा गया है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दी
अर्निंग फॉर द फर्स्ट डे, ठीक है, ओनली 1 डे। सो 10 डेज की कॉस्ट थी, हमने 1 डे के लिए 3000 से 10 को डिवाइड कर दी, 3000 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 300। इट मीन्स कि उसकी 1 डे की कॉस्ट है 300 रुपीज। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस विद 30, ये हो जाएगा 9000, ठीक है। सिमिलरली ये वाले क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे, ओके। चलिए एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ द 40 सच बुक्स। देखो आपको 72 वेट ऑफ द 72 बुक्स का कितना है, 9 kg है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं 1 बुक का वेट कितना है, सो 9/72 करेंगे, ठीक है। एंड वेट ऑफ द 40 बुक्स का निकालना है, सो वी विल मल्टीप्लाई विद दिस 40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 kg, ओके। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। अनीश मेड 42 रन्स इन 6 ओवर एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर। हु मेड मोर रन्स पर ओवर। देखो तो इसमें देखो ये 42 रन्स थे 6 ओवर में, 63 रन थे 7 ओवर में, ठीक है। तो हु मेड द मोर रन्स इन पर ओवर, तो पर ओवर का निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, 42 डिवाइड बाय 6 करेंगे, ये 7 आ गया, और यहाँ पे 63 डिवाइड बाय 7 करेंगे, 9 आ गया। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे किसने, ये जो अनूप था, अनूप ने रन ज्यादा बनाए पर ओवर में, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। The cost of 10 meter of the cloth is rupees 1890. Find the cost of 8 meter of the cloth. तो यहाँ पे 10 मीटर कॉस्ट गिवन है आपको, 10 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 1890। तो इसमें सबसे पहले हम पर मीटर क्लॉथ कॉस्ट निकालेंगे, ठीक। क्लॉथ कॉस्ट कितनी हो जाएगी, देखिए पर मीटर के अकॉर्डिंग 1890 को हम डिवाइड करेंगे हमारे 10 से, तो ये हो जाएगा आपका 189 रुपीज, ठीक है। ये आपकी 1 मीटर की आ गई। नाउ 8 मीटर की निकालनी है, तो 8 इंटू 189 करेंगे, और ये हो जाएगा 8 9 जा 63। देखो 8 9 जा हो जाएगा 72, 2 यहाँ पे 7 ये हो जाएगा, और ये 8 8 जा 64, 64 और 7 करना है तो 70 71, 1 और 7 8 1, और ये हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। ये कॉस्ट हो जाएगी 1512 रुपीज। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रमेश अर्न 4500 in 9 days. How much will be earned in 20 days? तो पहले आपको 1 की निकालनी है, सो 45 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे सबसे पहले। 9 5 जा 45, इट मीन्स उसकी 1 डे की कॉस्ट कितनी है, 500। वी विल मल्टीप्लाई द 20। देखिए अब 500 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 0 0 0, तो ये कॉस्ट हो जाएगी इसकी, ठीक है। ये आंसर है आपका 2 का 10,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 5 लीटर ऑफ द पेट्रोल, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर ऑफ द पेट्रोल। तो यहाँ देखिए 220 किलोमीटर दिया हुआ है इन 5 लीटर में, तो हम यहाँ पे 1 लीटर के लिए निकालेंगे 220 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 से 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक है। ये किलोमीटर ट्रेवल करेगा इन 1 लीटर। अब हमें 1.5 का निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 1.5 इंटू करना है हमें 44 से, तो ये जो भी आएगा आपका आंसर, ठीक है, ये फाइनल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। शानू पेज रुपीज 16,500 एज अ रेंट फॉर द 3 month. हाउ मच डज ही हैज टू पे फॉर द होल ईयर। देखो होल ईयर का नहीं निकालना है, पर पहले हमें निकालना पड़ेगा 1 मंथ का, ठीक है। 1 मंथ का निकालेंगे तो 16,500 डिवाइडेड बाय 3 किया, ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 0 0, मतलब इतनी कॉस्ट है इसकी 1 मंथ की। एंड देन वी विल मल्टीप्लाई 5 ये 5500 इनटू फॉर द होल ईयर मींस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा। चलिए नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1। इफ 1 2 3 x आर इन द प्रोपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ द x इज दिस। देखिए अगर दोनों ये प्रोपोर्शन में, तो पहला निकालते हैं, ये हो जाएगा इसका 1/2, फिर प्रोपोर्शन में था इसका रेशियो आ जाएगा 3 और ये x। अब आप देखो इनकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू, ठीक है। देखो यहाँ ये 2 है, ओके, यहाँ 3 है, हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तभी 3 आया। इसको भी 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा
ये 6 आ जाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू है इसकी 6 की। 2 देखो, रवि अर्न्स 1800 रुपीज इन 6 डेज, इन 12 डेज ही विल अर्न, 12 डेज में देखो 6 डेज में इतना करता है, मतलब 1800 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18 और ये 0 0, मतलब 300 वो अर्न करता है। 12 डेज में निकालना है, इट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस 3, तो ये हो जाएगा 3600। तो 3600 कहाँ है, ये वाला, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 4 8 9 x आर इन द प्रोपोर्शन। देखिए सेम क्वेश्चन है ये वाला आप खुद से कर लेंगे। चलिए तो देखिए ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है, ओके। चलिए अब इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं ये सब आपको खुद से ट्राई करने हैं, ओके। आई होप आप सबको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।